বিলিভার্স ইস্টার্ন চার্চ বিশ্বব্যাপী মানব সেবার মধ্য দিয়ে প্রভু যিশুর বাণী ও মতাদর্শ প্রকাশ ও প্রচার করে চলেছে। কোথাও কুষ্ঠ রোগীদের পরিচর্যা, কোথাও প্রান্তিক মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ, অভুক্তদের মধ্যে খাবার পরিবেশন অথবা প্রান্তিক মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার মতো মানবিক কাজে এগিয়ে চলেছে বিলিভার্স ইস্টার্ন চার্চ। বিশ্বের 18টি দেশে ছড়িয়ে রয়েছে এই চার্চের ফাদার ও সিস্টাররা। এবার তাদের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের বুকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা তুলে দেওয়া। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে চার্চ কর্তৃপক্ষ। আগামীকাল কলকাতার সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে হতে চলেছে বিশেষ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান, যেখানে তুলে ধরা হবে চার্চের বিভিন্ন মানব সেবার নিদর্শন। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মেট্রোপলিটন বিশপ মোরান মোর স্যামুয়েল থিওফিলাস, ফাদার সুজয় ও ফাদার রিতেশ কুমার সহ অন্যান্যরা। Well, thank you all for being here, and thank you for the time. Believers Christian Church is a church that is spread across every state in India and some 18 different countries of the world. Jesus Christ told that the church should be light and salt to the nation, and that is our main motto, to help to emancipate those who are in need, particularly the most marginalized and underprivileged people in our communities. And our church, for the last 3 decades here in the state of West Bengal, have helped over 10,000 children from their kindergarten to the upper 12th grade, to educate them and to give them all free essentials required for their education and give them hope and a good future. We serve the widows, those widows who don't have house and who don't have any reason to live, nobody to depend on. We give them shelter, clothing, food, whatever the essential items we can to give them a support for living. We also help a lot of lepers cleaning their wounds and giving them medicines and trying to help the best we can to give them healing and hope for the life God gave them in this world. We help a lot of situations where natural calamities occurred, flood came up, where people have lost a lot of their livelihood, their house, their savings. We do help them whenever we can with the best way possible, mobilizing every resources for their upliftment. So the church is to be a blessing, and our one motto, the only passion we have, is to be a blessing for the country where we live. Serve the people, be a brother, a sister, a father, a mother, through the love Jesus Christ has demonstrated and which he told us to do for the people of the nation. So that's exactly what we do here in the state and wherever our church is. How many countries you start your service? We have in 18 countries the Believers Christian Church. In the state of Kerala, where we have our World Church Headquarters, we say, we have over 11 schools, many of them under CBSE stream of education. We have a large medical college and hospital, and this Father Sijo Pandapalli, he is our PRO of the church as well as the manager of the medical college and hospital, and it is over 800 bedded super specialty kind of hospital there.
and we have also its branches here and there. That is our World Church headquarters in Kerala. And then we are developing a school, hospital right there in Kigali, which is the capital city of Rwanda, one of the countries in Eastern Africa. With the support of the government there, we are building up a huge medical college hospital to serve that country and possibly the whole of the countries of Eastern Africa. And we have worked in Sri Lanka, we have worked in Nepal, we have in Bangladesh, we have in Bhutan. All those places we have, just like Roman Catholic Church. We have one head of the church, but we have bishops and priests and brothers and sisters who are of the country or the native people who give leadership for the country and the state wherever they are. What are your main focus for Bengal? From What are your main focus for Bengal? What are your plans for West Bengal? Yeah, West Bengal. West Bengal. Well, we want to continue to do whatever we've been doing for the last 3 decades. And that is where we need your support, and that's where we need the support and assistance from all the secular and government entities. We want to see a large medical college hospital coming up for the northeastern part of the country. The reposed Metropolitan who departed from us, that was one vision and dream he had forever. And we are working very hard, and possibly my faith and hope is that in another 2 years to 3 years, we will be able to set up something quite significant for the West Bengal state and an entity that will serve maybe all of the northeastern part of the country. Thank you. हमारा बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च, जो हम लोग अभी आइलैंड में जो मिनिस्ट्री करते हैं, सेवा करते हैं लोगों का, और जो हमारे पुरुलिया में जो सेवा करते हैं हमारे कोरियों के बीच में, तो वहाँ बहुत कठिनाई है, क्योंकि जब हम लोग कोरियों के बीच में सेवा करते हैं तो लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, जो विचार है, यदि आपको कोई बच्चा यदि कोरी के गांव से आए तो उसका गांव से आने के बाद ही लोग उससे डिसोसिएट करने लगते हैं। तो जो आइडेंटिटी है, बच्चा जब मिनिस्ट्री का हम जानते हैं वो आइडेंटिटी क्राइसिस में, और जब हम अपने परिवार को लेकर उन कोरियों के बीच में जाके रहते हैं, उस गांव में जब हम जाके रहते हैं, जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं और जब कोई उनसे स्कूल में पूछेगा आप कहाँ पे रहते हैं, और वो जो एड्रेस बोलेगा कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, तुरंत वो लोग डिसोसिएट करना शुरू कर देते हैं। सो यू विल हैव ए बिगर चैलेंज, नॉट ओनली द डिफिकल्टीज एंड ऑल, बट द सेंस ऑफ लॉनलीनेस एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। रही बात आइलैंड का, आइलैंड के उन जगहों में बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च गया है जहाँ कोई भी व्यक्ति आपको जाएगा ही नहीं। लोगों को सैनिटेशन क्या होता है मालूम नहीं। लोग उसी पोखर जो होता है, पोखर में वो नहाते थे, उसी में ब्रश करते थे और फिर उसी में अपना प्लेट धो के लाते थे। तो बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च के जो हमारे याजक हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, और एक बहन जो हमारी सेवा, उनको बोला जाता है सिस्टर ऑफ क्रॉस, ये बहनें उनके बीच में जाती है, उनके बीच में काम करती है। तीसरा जो हमारा बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च का सेवकाई है वो है लिटरेसी, एडल्ट लिटरेसी क्लासेस। ये क्या है, ये बहुत जानना जरूरी है। बहुत सारी हमारी बहनें जब वो बच्ची होंगी, उनके माता पिता उनको अवसर नहीं दिए कि वो जाकर स्कूल में पढ़ाई करें, लेकिन आज बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च उन माता लोगों को जाके एक अवसर देते हैं कि वो पढ़ाई करें। अब सोचिए, इस समय में भी रहने के बावजूद जहाँ बहुत सारे स्कूल्स है, नेटवर्क है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ है, लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी बहनें और माताएं हैं जिनको अभी भी अल्फ़ाबेट लिखना नहीं आता है। तो बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च इस सच्चाई को समझने के बाद
हमारे आत्मिक पिता हमारे मेट्रोपॉलिटन जी के प्रेयर और उनकी अगुवाई में इस सेवकाई को शुरू किए कि हम उन बहनों को एजुकेट करेंगे, क्योंकि वो जब माँ शिक्षा को प्राप्त करेगी उसके बच्चे शिक्षित होंगे और उसके बच्चे समाज शिक्षित समाज को करेंगे। कठिनाई बहुत है क्योंकि आपके पास जो फैसिलिटी सिटी में होना चाहिए नहीं मिलेगा। तो बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स, स्टेइंग इन लेप्रोसी कॉलोनी और स्टेइंग इन आइलैंड्स इटसेल्फ इज ए चैलेंज। आपका नाम? मेरा नाम रेवरेंड फादर रितेश कुमार है। मेट्रोपॉलिटन का फेलिसिटेशन प्रोग्राम चल रहा है कल। हमारा फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन का डेथ का बाद में नया मेट्रोपॉलिटन सेलेक्ट हुआ है चर्च के लिए। तो नया मेट्रोपॉलिटन का विजन है, ड्रीम है, हर एक स्टेट के लिए और हमारा भारत के लिए कुछ करना है। तो हम लोग हर एक डायसिस में अभी मेट्रोपॉलिटन का फेलिसिटेशन चल रहा है। अभी कल हमारा वेस्ट बंगाल का और ये आर्च डायसिस का फेलिसिटेशन साइंस सिटी में ऑर्गेनाइज किया हुआ है। जैसे मेट्रोपॉलिटन बोला है, हमारा एक इच्छा है कि वेस्ट बंगाल में पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अच्छा मेडिकल फैसिलिटी बनाने के लिए। जैसे अपना केरला में है, अभी जो वीक का जो सर्वे लास्ट इश्यू का सर्वे में कंट्री का बेस्ट 50 हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में केरला से 2 आया है और हमारा मेडिकल कॉलेज है। तो ऐसे एक बढ़िया अच्छा वाला मेडिकल कॉलेज अपना वेस्ट बंगाल में स्टार्ट करने के लिए हमको इच्छा है। वही हमारा मेट्रोपॉलिटन बोल रहा था, उसका इनिशियल डिस्कशंस अभी चल रहा है। तो पूरा उसका डिटेल्स अभी बता नहीं सकता है, उसको पूरा उसका डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है। जब होगा हम जरूर उसका अनाउंसमेंट करेगा। फिर मैं 10 साल वेस्ट बंगाल में काम किया था, पूरा विलेज वेस्ट बंगाल का ट्रैवल किया है। जैसे मेट्रोपॉलिटन ने बता रहा था 10,000 करीब बच्चों लोगों को हम लोग पढ़ाई किया है और उसका फूड एक्टिविटीज़ फ्रॉम हेल्थ एंड हाइजीन टू जो कुछ हम लोग कर सकते हो अभी तक सब कुछ टेक केयर किया है। विडोज का बीच में काम किया है, पुरुलिया में लेप्रोसी अफेक्टेड पीपल उनका बीच में काम किया है, आइलैंड में सुंदरबन आइलैंड में जाकर काम किया है। तो हम लोगों को जो कुछ अभी तक हमारा विद इन आवर लिमिटेड रिसोर्सेज हम लोग को जो कुछ कर सका वो किया है, आगे भी वो करना चाहता है। वही हमारा मेट्रोपॉलिटन का विजन, इसलिए हम लोग आया हुआ है। आप लोग कितने देश में हैं आप लोग? अभी हमारा जैसे मेट्रोपॉलिटन बोला है 18 कंट्रीज में हम लोग काम चल रहा है। यूएस में, यूरोप में, अफ्रीकन कंट्रीज में है। अफ्रीका में अभी एक बड़ा हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उधर का गवर्नमेंट का साथ साथ मिलकर ईस्टर्न अफ्रीका में एक बड़ा हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। वेस्ट बंगाल में आप लोग जो हेल्थ के लिए काम करने चाहते हैं, तो राज्य सरकार से कोई सहायता लोग चाहते हैं? कहाँ से? राज्य सरकार की कोई सहयोग? गवर्नमेंट से। हाँ ना, अभी एक आदमी हम लोगों को अप्रोच किया है, फ्री लैंड देने के लिए अप्रोच किया है, वो डिस्कशन चल रहा है। हमारा जो हॉस्पिटल केरला में है, आप लोग सुना होगा CMC वेल्लूर हॉस्पिटल का, वो वहाँ का डॉक्टर लोग और वहाँ का मेडिकल डायरेक्टर है हमारा जो केरला में अभी है। ऐसे CMC का डॉक्टर लोग को लेके आके वेस्ट बंगाल में एक मिशन माइंडेड हॉस्पिटल, नॉट अ बिजनेस एंटिटी, एक मिशन माइंडेड हॉस्पिटल बट अफोर्डेबल ट्रीटमेंट टू ऑल पीपल, लेकिन क्वालिटी अफोर्डेबल ट्रीटमेंट टू ऑल पीपल हमारा एम है। अच्छा ट्रीटमेंट सबके लिए मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। लैंड लोकेट हुआ है? अभी साइंस सिटी के आसपास में ही ऐसे डिस्कशन चल रहा है, लेकिन कुछ फाइनलाइज नहीं है, अभी तक नहीं है। आपका शुभ नाम? थैंक यू फादर सिजो, थैंक यू। वो लगेगी। हेलो लक्ष्मी। इधर देखिए, रेडी करो। रेडी? सर, जैसे फादर ने बताया, बताया ये मानव सेवा के लिए आप लोग वर्क आए हैं, मानव सेवा के लिए आप लोग काम करना चाहते हैं, कितना कठिनाई आप लोगों को झेलना पड़ रहा है, कितना दूर नहीं? अभी जो हमारा बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च, जो हम लोग अभी आइलैंड में जो मिनिस्ट्री करते, सेवा करते हैं लोगों का,
और जो हमारे पुरुलिया में जो सेवा करते हैं हमारे कोरियों के बीच में, तो वहाँ बहुत कठिनाई है, क्योंकि जब हम लोग कोरियों के बीच में सेवा करते हैं तो लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, जो विचार है, यदि कोई बच्चा यदि कोरी के गांव से आए तो उसका गांव से आने के बाद ही लोग उससे डिसोसिएट करने लगते हैं। तो जो आइडेंटिटी है, एक बच्चा जब मिनिस्ट्री का, हम जानते हैं वो आइडेंटिटी क्राइसिस में है। और जब हम अपने परिवार को लेकर उन कोरियों के बीच में जाके रहते हैं, उस गांव में जब हम जाके रहते हैं, जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं और जब कोई उनसे स्कूल में पूछेगा आप कहाँ पे रहते हैं, और वो जब एड्रेस बोलेगा कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, तुरंत वो लोग डिसोसिएट करना शुरू कर देते हैं। सो यू विल हैव ए बिगर चैलेंज, नॉट ओनली द डिफिकल्टीज एंड ऑल, बट द सेंस ऑफ लॉनलीनेस एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। रही बात आइलैंड का, आइलैंड के उन जगहों में बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च गया है जहां कोई भी व्यक्ति आपको जाएगा ही नहीं। लोगों को सैनिटेशन क्या होता है मालूम नहीं। लोग उसी पोखर जो होता है, पोखर में वो नहाते थे, उसी में ब्रश करते थे और फिर उसी में अपना प्लेट धो के लाते थे। तो बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च के जो हमारे याजक हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, और एक बहन जो हमारी सेवा है उनको बोला जाता है सिस्टर ऑफ क्रॉस, ये बहनें उनके बीच में जाती है, उनके बीच में काम करती है। तीसरा जो हमारा बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च का सेवकाई है वो है लिटरेसी, एडल्ट लिटरेसी क्लासेस। ये क्या है, ये बहुत जानना जरूरी है। बहुत सारी हमारी बहनें जब वो बच्ची होंगी, उनके माता पिता उनको अवसर नहीं दिए कि वो जाकर स्कूल में पढ़ाई करें, लेकिन आज बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च उन माता लोगों को जाके एक अवसर देते हैं कि वो पढ़ाई करें। आप सोचिए, इस समय में भी रहने के बावजूद जहां बहुत सारे स्कूल्स है, नेटवर्क है, इंटरनेट फैसिलिटीज है, लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी बहनें और माताएं हैं जिनको अभी भी अल्फाबेट लिखना नहीं आता है। तो बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च इस सच्चाई को समझने के बाद हमारे आत्मिक पिता, हमारे मेट्रोपॉलिटन जी के प्रेयर और उनकी अगुवाई में इस सेवकाई को शुरू किए कि हम उन बहनों को एजुकेट करेंगे, क्योंकि वो जब माँ शिक्षा को प्राप्त करेगी, उसके बच्चे शिक्षित होंगे और उसके बच्चे शिक्षित समाज को करेंगे।